Hello student, welcome back to my channel. So in today's video we are going to cover some remaining monetary measures undertaken by RBI to control inflation. In last video I have explained you cash reserve ratio, SLR, OMO and bank rate measures undertaken by RBI to control inflation, and now we are going to do remaining measures which undertaken by RBI to control inflation. So one of the very important measures, that is called repo rate and reverse repo rate. Repo rate and reverse repo rate, these two are liquidity adjustment facility tools. Then we'll understand how repo rate and reverse repo rate work to control inflation situation in the market. See, repo rate used by RBI whenever money supply is less in the market. जब भी मार्केट में मनी सप्लाई कम हो, कमर्शियल बैंक आर नॉट एबल टू गिव लोन टू द पीपल, और मार्केट में पैसे की सप्लाई बहुत कम हो, बैंक आर बैंकरप्ट, दैट टाइम दे आर यूजिंग रेपो रेट पॉलिसी. इन रेपो रेट पॉलिसी सेंट्रल बैंक lend money to commercial bank, or we can say in repo rate commercial bank borrow money from RBI or central bank for short period of time by selling their security. For example, अगर मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी बहुत कम है, दैट टाइम सेंट्रल बैंक लैंड मनी टू कमर्शियल बैंक, और वी कैन से कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से पैसे उधार लेती है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बाय सेलिंग देयर सिक्योरिटी. सो विद द हेल्प ऑफ दैट मनी दे कैन एडवांस लोन टू पीपल एंड इंक्रीज सप्लाई ऑफ मनी इन द मार्केट. सो वेन एवर देर इज अ डिफ्लेशन इन द मार्केट, दैट टाइम RBI use repo rate system. In repo rate system, money flow from central bank to commercial bank, so that commercial bank can advance more loan and money to the people, and people can spend that money in the market and money supply can flow. So repo rate में commercial bank central bank से पैसे उधार लेती है for a short period of time by selling their security, and that money commercial bank will repay at future decided date with a given rate of interest. Okay, generally in कोविड पीरियड रेपो रेट का जो इंटरेस्ट है वो गवर्नमेंट ने कर दिया है 5.19%. So in simple, in repo rate money flow from central bank to commercial bank for a short period of time. So repo rate used by central bank whenever supply of money is less in the market. Same here, reverse repo rate. Reverse repo rate is the opposite of repo rate. Reverse repo rate system used by central bank whenever inflation is there in the market. इसका मतलब होता है जब मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी बहुत ज़्यादा होती है. Whenever supply of money is very high in the market, that time central bank use reverse repo rate system. In reverse repo rate, central bank give one टाइप ऑफ ग्रीड टू कमर्शियल बैंक. मतलब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को बोलती है कि आप हमें लोन दो एंड फॉर दैट वी विल गिव यू गुड रेट ऑफ इंटरेस्ट. सो कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, शॉर्ट पीरियड के लिए दे आर गिविंग लोन टू सेंट्रल बैंक. So in reverse repo rate money flow from commercial bank to central bank. Again reverse repo rate में central bank borrow करती है and commercial bank lend करती है for short period of time. And recently reverse repo rate percentage is 4.9%. So repo rate and reverse repo rate, these two tool used by RBI to control inflation and deflation. In repo rate money flow from central bank to commercial bank whenever supply of money is very less in the market, and in reverse repo rate money flow from commercial bank to central bank whenever supply of money is very high in the market. So repo rate यूज़ करता है RBI जब मार्केट में मनी सप्लाई कम हो, और रिवर्स रेपो रेट यूज़ करता है RBI जब मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा हो. So these are one type of measures undertaken by RBI to control inflation. Next is qualitative measures. There are many measures, but we have taken some important measures. So in qualitative measures, one of the very important is regulation of margin requirement. Now what is regulation of margin requirement? So first we'll understand that it determines the loan value of a collateral security offered by a borrower. First of all, collateral का मतलब होता है कि whenever we borrow any loan from any bank, तो हमें एक security देनी पड़ती है, that is called collateral. So रेगुलेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि वेन एवर वी आस्क फॉर लोन और वेन एवर वी गेट एनी लोन फ्रॉम एनी बैंक, तो जितने की हमने सिक्योरिटी दी हुई, जितने का हमने कोलेटरल दिया है, वो उतने का हमें लोन नहीं मिलता है. सो margin requirement is a difference between market value and it is the difference between market value and margin requirement. कैसे? देखो, सपोज कि एक पर्सन है एंड ही रिक्वायर्ड 4 crore रुपीज़ लोन.
ठीक है। तो 4 करोड़ रुपीज़ लोन अगर उसे चाहिए तो उसे 5 करोड़ का मॉर्गेज का मतलब होता है एक तरह का सिक्योरिटी देना पड़ेगा। सो उसने अपना जो घर है जिसका वैल्यू 5 करोड़ रुपीज़ है वो गिरवी रखा है टू गेट अ 4 करोड़ रुपीज़ लोन, बिकॉज मार्केट में मार्जिन रिक्वायरमेंट है 20%। सो 5 करोड़ का लोन के लिए 4 करोड़ के लोन के लिए उसने 5 करोड़ की सिक्योरिटी दी। तो 5 करोड़ का अगर हम 20% निकालेंगे तो उस पर्सन को 4 करोड़ रुपीज़ का लोन मिल जाएगा। सो मार्जिन रिक्वायरमेंट का इन शॉर्ट सिंपल मतलब होता है कि वेन एवर वी आस्क फॉर लोन टू कमर्शियल बैंक, तो जितना हम लोन के लिए अप्लाई करते हैं उतना पूरा हमें लोन नहीं मिलता, उसका जो भी मार्जिन रिक्वायरमेंट है दैट इज़ गोइंग टू बी डिडक्ट बाय बैंक और उसके बदले हमें पैसे मिलते हैं। सपोज़ कि अगर आपने 1 लाख का लोन अप्लाई किया है, ठीक है, तो अगर 20% मार्जिन रिक्वायरमेंट है तो 1 लाख में से 20% कट कर आपको 80,000 हाथ में आएंगे। सो दैट इज़ ऑल्सो यूज बाय RBI टू कंट्रोल सप्लाई ऑफ मनी इन द मार्केट। फॉर एग्जाम्पल, इफ द सप्लाई ऑफ मनी इज़ वेरी हाई, इफ कमर्शियल बैंक आर एडवांसिंग मोर लोन टू द पीपल, तो RBI क्या करेगी, मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा देगी। मे बी दे कैन चार्ज 30%, 40%, तो क्या होगा, the demand of loan will comes down. Same here, if supply of money is very less, that time RBI will reduce margin requirement. So in short, रेगुलेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि जितने का हमने लोन अप्लाई किया, जितने की हमने सिक्योरिटी रखी है, उसका कुछ पार्ट कट होके हमें लोन मिलता है। इफ़ आई हैव अप्लाइड फॉर 1 लाख रुपीज़ तो मुझे 80,000 आएगा क्योंकि मेरी मार्जिन रिक्वायरमेंट है, बिकॉज बैंक की मार्जिन रिक्वायरमेंट है 20%। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर्स यूज बाय RBI टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। नेक्स्ट इज रेगुलेशन ऑफ consumer credit. See, this is also one type of important measures used by RBI to control inflation and deflation. If suppose there is a increase in a demand for a things, generally ये जो सिस्टम होता है RBI इसलिए लगाती है कि consumer should spend less money on a luxurious product like computer, then car, TV, domestic furniture and etc. Suppose ऐसा हो रहा मार्केट में कि consumer credit raise, or we can say that consumer are spending more money to परचेस लग्जरियस प्रोडक्ट। आजकल आपने देखा होगा कि लोन पर होम मिल रहा है, देन लोन पर कार मिल रही है, लोन पर मोबाइल फ़ोन मिल रहे हैं। सो ड्यू टू दैट ईच एंड एवरी पर्सन डिमांडिंग, आजकल बहुत सारी चीज़ें हम लोन पे ले रहे हैं बिकॉज इट इज़ ईजिली अवेलेबल। सो व्हाट विल हैपन, ड्यू टू दैट सप्लाई ऑफ मनी विल इंक्रीज इन द मार्केट। सो वेन एवर देर इज अ इन्फ्लेशन, और वी कैन से वेन एवर कंज्यूमर क्रेडिट इंक्रीज, सो RBI विल यूज दिस सिस्टम। RBI क्या करेगी, दे विल पुट रेगुलेशन ऑन कंज्यूमर क्रेडिट। हाउ, क्या करेगी RBI, दे विल इंक्रीज डाउन पेमेंट एंड रिड्यूस EMI। सी, आजकल हम हर एक चीज़ लोन पर लेते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन हुआ, कार हुआ, स्कूटर हुआ, बाइक हुआ, देन TV सेट, कंप्यूटर्स एक्सेट्रा। सो वाई वी आर टेकिंग ऑन लोन, बिकॉज इट इज़ अवेलेबल ऑन EMI, सो वी कैन पे EMI मंथली, एक साथ पेमेंट नहीं कर सकते। बट सपोज इफ देर विल बी इंक्रीज इन अ कंज्यूमर क्रेडिट, सो RBI कैसे कंट्रोल करेगी, RBI विल इंक्रीज डाउन पेमेंट एंड रिड्यूस EMI। पहले सपोज कि मुझे कार लेनी और उसका पूरा इनकम है 7 लाख रुपीज़, सो अगर डाउन पेमेंट 1 लाख रुपये और 5 लाख रुपये हमें EMI में पे करना, देन वी कैन ईजिली गेट इट। बट इफ़ दिस थिंग विल टेक प्लेस, तो क्या होगा, कंज्यूमर क्रेडिट विल इंक्रीज। सो टू कंट्रोल कंज्यूमर क्रेडिट RBI विल इंक्रीज डाउन पेमेंट एंड रिड्यूस EMI। अभी क्या हो जाएगा, RBI कहेगी कि आपको 5 लाख रुपये डाउन पेमेंट करना है एंड ओनली 1 लाख रुपीज़ क्या EMI आपको मिलेगा। सो व्हाट विल हैपन, कंज्यूमर क्रेडिट विल कम डाउन। Same here, if consumer credit fall, तो RBI will decrease down payment and increase EMI facility. So regulation of consumer credit also used by RBI to increase and to control consumer credit. अगर consumer credit ज़्यादा है तो डाउन पेमेंट ज़्यादा एंड EMI कम। If consumer credit is less, then down payment decrease and EMI more वाला system RBI follow करती है। So this also useful to control inflation in the market. Next is credit rationing. This is also one type of measures undertaken by RBI to control inflation. It is generally imposed by RBI on commercial bank. क्या होता है इसमें, the central bank may impose a ceiling on loans and advances to regulate and control the purpose for which credit is offered by commercial bank. See, credit rationing system generally
imposed by RBI on commercial bank. Nowadays people like loan easily available हो जाता है, so people used to take a loan for many unnecessary reason also, unproductive purpose also, and whenever supply of loan increase then automatically supply of money will increase in the market. तो जब भी मार्केट में इन्फ्लेशन का सिचुएशन होता है that time RBI use this system. RBI क्या करेगी, कमर्शियल बैंक को एक तरह का इन्फॉर्मेशन देगी, और वी कैन से कमर्शियल बैंक के ऊपर एक तरह का कंट्रोल लगा देगी कि वॉट एवर लोन यू आर गिविंग टू पीपल और वॉट एवर एडवांस यू आर गिविंग टू पीपल, उसको एक कंट्रोल किया जाए. अननेसेसरी यू डोंट ऑफर लोन टू पीपल. इफ़ यू आर ऑफरिंग लोन टू पीपल तो उसका एक रीज़न होना चाहिए. इफ़ दे आर टेकिंग लोन फॉर प्रोडक्टिव पर्पज देन इट इज़ ओके, बट इफ़ दे आर टेकिंग लोन फॉर अनप्रोडक्टिव पर्पज देन ट्राई टू कंट्रोल इट. तो इन शॉर्ट क्रेडिट रेशनिंग का मतलब होता है कि RBI use this method. In this method RBI giving information to commercial bank कि whatever loan you are offer to people उसका कोई purpose होना चाहिए. unnecessary don't advance any loan to the people. और सेम ईयर अगर मार्केट में मनी सप्लाई कम है तो RBI कमर्शियल बैंक को बोलेगी कि आप लोगों को लोन दे सकते हैं. इफ़ एनी प्रोडक्टिव रीज़न इज़ नॉट देयर तो भी चलेगा. इस तरह से RBI यूजिंग मैनी मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इन द मार्केट. स्टूडेंट प्लीज़ गो थ्रू एंटायर वीडियो. आई होप दिस वीडियो विल डेफिनेटली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. ये जो टॉपिक है ये 12th में भी है और SY BCom में भी है. सो ऑल द स्टूडेंट कैन गो थ्रू इट. थैंक यू सो मच.